So now slowly we are moving towards the advanced cardiac life support. Basic life support जो है basically that's the foundation of the cardiac resuscitation. BLS के बिना कुछ हो नहीं सकता है. But ACLS has got its own importance. Because आप अगर बहुत अच्छा BLS कर भी रहे हो, अगर ACLS का कंपोनेंट नहीं आ पाता है, तो फिर आपका पेशेंट रिसस्टेट नहीं हो पाएगा, ROSC अचीव नहीं हो पाएगा. So BLS and ACLS, both components of cardiac resuscitation are equally important. BLS को कभी आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें कि ये तो बाय स्टैंडर्ड भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, हम तो चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो इसलिए हम ACLS ही करेंगे. दिस इज नॉट सो. आई वेलकम आवर CNO मैडम. So ACLS is a more sophisticated and advanced treatment that builds on the fundamentals of basic life support. The primary difference between ACLS and BCLS is that ACLS requires more advanced knowledge and expertise than BLS to perform correctly. So definitely ACLS is an advanced kind of thing. So we need more knowledge, more expertise to perform it. It includes certain drugs, airway adjuncts, and manual defibrillator for ACLS. And the team is more organized and more integrated. So if you look at the difference between BLS and ACLS, this is not that we do not maintain the patency of airway while doing BLS, but we do it with basic maneuvers. These basic maneuvers are head tilt, chin lift, or jaw thrust. Although these are called basic maneuvers, but this proficiency is not easy to achieve. These are difficult things. Those who are working in emergency on critical care day in and day out, they may find it easy to perform, but this is not that this is very easy skill to learn. Although it saves a lot of life. So we need to practice and develop our proficiency for head tilt, chin lift, and jaw thrust maneuver. If we move to ACLS from BLS, we use certain adjuncts which requires further skills like putting an oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, laryngeal mask airway, or putting an endotracheal tube inside the trachea. So these are the component of ACLS, which is over and above the airway patency maneuvers of BLS. So we also ventilate our patients in BLS. The ratio is 30:2, just explained by Mr. Ram Reddy. That we give 30 compressions and 2 breaths, 30:2, 30:2, 5 sets makes 1 cycle. And in ACLS, what we do, we usually do bag and mask ventilation, which is more complete, more perfect, more correct. And if there is a definitive airway in place, like laryngeal mask airway or endotracheal tube, this bag mask ventilation accurately delivers the tidal volume, the required tidal volume, the required breath, with a rate that is not coordinated with chest compressions. One definitive airway is in place. कंप्रेशन अपने रेट से चलते रहता है 100 to 120 पर मिनट एंड जो ब्रेथ है वो अपने रेट से चलते रहता है 1 breath every 6 seconds. We also use certain drugs during ACLS like adrenaline, amiodarone. Basic life support teaches us about use of automated external defibrillator, AED. Whereas in ACLS, we use manual defibrillator. You will wonder that how an automated device can be basic and a manual device can be advanced. Because our manual gear cars are rated inferior to the automatic transmission cars. So anything that is automatic must be by virtue of it named, it should be advanced. But this is not in the case of CPI. AED, although the name is automated external defibrillator, but this is inferior to manual defibrillator. You know why? Because it has limited number of functions. It has same set of rules. It may commit mistake also. And that mistake is not known to us. AED ने रिदम को केवल रीड किया है, इसने सही किया है या गलत किया है हमें पता नहीं चलता. ये बोलता है कि रिदम इज सॉकेबल, गोइंग टू डिलीवर शॉक, हम लोग शॉक डिलीवर कर देते हैं. तो ऑल्दो इट इज ऑटोमेटेड, सो इट इज यूजफुल फॉर द ले बाय स्टैंडर्ड्स. जिनको ज्यादा पता नहीं है मेडिकल साइंस के बारे में उनके लिए ज्यादा अच्छा है ये. बट दिस इज नॉट दैट, दिस इज एन एडवांस्ड गैजेट. एडवांस्ड गैजेट इज एक्चुअली मैनुअल डिफिब्रिलेटर. इट हैज मेनी फंक्शंस. One more difference is there between BLS and ACLS. In BLS, usually
we have few number of resuscitators. जैसे किसी ने देखा किसी को कार्डियक अरेस्ट होते हुए, उसने तुरंत ही रिसस्टेशन शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि वो उस समय अकेले ही हो, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि उसे 2 जना मिल जाए, थोड़ी देर बाद उसे 3 जना मिल सकते हैं। लेकिन जब ACLS हम लोग शुरू करते हैं तो मिनिमम वी शुड हैव 3 people एंड द टीम कंप्लीट्स बाय एडिशन ऑफ मोर 3 people, so minimum 6 people are required. One is for management of airway, other is for compression, third is for defibrillation, fourth is timer and record keeping, fifth is for intravenous or intraosseous access and delivery of drugs, and sixth is the team leader. There is one more concept of role, that is CPR coach. तो जो defibrillator होता है वही CPR coach भी होता है, क्योंकि उसका काम तो every 2 minutes ही होता है, तो बाकी 2 मिनट वो बैठा ही रहता है। तो वो CPR कोच मतलब वो कमेंट्री करते रहता है कंप्रेसर को, वेंटिलेटर को, कि आप लोग अपना काम ठीक से करिए, नहीं कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर वी नीड हायर नंबर ऑफ पर्सन्स, हायर नंबर ऑफ टीममेट्स टू परफॉर्म ACLS over and above BLS. So in BLS we give 100 to 120 compressions per minute, 30 in the ratio of 30:2. Do you expect there is any change in advanced cardiac life support? Anyone, any student? So in last 5-6 slides we have seen that BLS there is always some addition of new gadget, new drug or new technique when we are performing ACLS beyond BLS. क्या चेस्ट कंप्रेशन में भी हम लोग ACLS में कुछ नया करते हैं? क्या तो ACLS है तो कुछ करते हैं, हम बता दो। वेंटिलेशन और कंप्रेशन का रिलेशन खत्म हो जाएगा, वेंटिलेशन विल बी इंडिपेंडेंट एंड कंप्रेशन। यस, आई एग्री, थैंक यू। सो ACLS में ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि जैसे ही आप ACLS अनाउंस कर देते हैं आप रेशियो भूल जाएंगे। हाँ, ये बात है कि ACLS में अगर आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर दिया है, लेंजियल मास्क एयरवे ले लिया है, डेफिनेटली एयरवे आ गया, तो डेफिनेटली आपका दोनों का जो रिदम है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। हमको ध्यान इस बात पे देना है कि अगर CPR में अगर कोई 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं तो वन इज चेस्ट कंप्रेशन, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरत है, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। चेस्ट कंप्रेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, नो सब्स्टिट्यूट फॉर चेस्ट कंप्रेशन। सो इवन इन ACLS don't think much, it is chest compression. So there is no substitute of chest compression, number 1, and there is no substitutes of defibrillation. So actually these are 2 components which brings your patient back to the spontaneous circulation. There are only 2 components, chest compressions and defibrillation. अगर रिदम सॉकेबल है और अगर आपने सॉक नहीं दिया तो पूरे CPR करने का कोई फायदा ही नहीं। और अगर सॉक देने के चक्कर में, ADR देने के चक्कर में, एमाइडोरन देने के चक्कर में, वेंटिलेट करने के चक्कर में, इंटुबेट करने के चक्कर में अगर आपने चेस्ट कंप्रेशन बंद कर दिया तो फिर आपका RVC होने वाला नहीं। इसलिए मिस्टर राम रेड्डी जी मस्ट हैव एम्फसाइज्ड हाई क्वालिटी CPR, हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशंस। व्हाट इज हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशंस? देयर इज रेट 100 to 120 per minute. There is depth 2 to 2.4 inches. In centimeter it is 5 to 6 centimeters, and there is minimal interruptions in compressions, minimal interruptions। इंटुबेट करने के लिए, स्विच रोल करने के लिए, किसी भी काम के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा का इंटरप्शन नहीं करना है, बिकॉज वंस यू लूज चेस्ट कंप्रेशन यू आर गोइंग टू लूज योर पेशेंट डेफिनेटली। So this is adult cardiac arrest algorithm. As soon as you detect or recognize a victim of cardiac arrest, you will start CPR as explained by my esteemed co-faculty in previous lecture. We start giving oxygen, we attach monitor or defibrillator, and after 2 minutes of chest compressions and ventilation, we go for checking rhythm. If rhythm is shockable, we give shock. If rhythm is non-shockable, we continue chest compression for 1 more cycle. Thereafter, we again assess rhythm. If the rhythm is shockable, we give shock. If the rhythm is non-shockable, we continue chest compressions, and other team members begin with IV or IO access and administration of medications. So first medication given in adult cardiac arrest is epinephrine, that is Agnalet.
It is 1 mg. And we repeat it after every 3 to 5 minutes. So in every alternate cycle, you can remember, we need to give adrenaline during CPR. जैसे 2 साइकिल के बाद हमने शॉक दिया, उसके बाद हमने उसको एड्रेनालिन दे दिया, फिर शॉक, फिर एड्रेनालिन। तो एक साइकिल का जो 2 मिनट का होता है साइकिल, एवरी अल्टरनेट साइकिल में हमें एड्रेनालिन देना है। चौथी साइकिल करने के बाद भी अगर हमारा पेशेंट शॉकेबल है, शॉक दे रहे हैं, रिफ्रैक्टरी बीपीएफ हो रहा है, आ नहीं रहा है, हम लोग उसमें एमाइडोरॉन यूज करते हैं। द फर्स्ट डोज ऑफ एमाइडोरॉन इट इज 300 मिलीग्राम। और जैसे हम लोग एड्रेनालिन एवरी अल्टरनेट साइकिल दे रहे थे, वैसे ही एमाइडोरॉन भी एवरी अल्टरनेट साइकिल जाए। तो हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 2 साइकिल के बाद फर्स्ट शॉक, तीसरे साइकिल के बाद शॉक एंड एड्रेनालिन, चौथे साइकिल के बाद शॉक एंड एमाइडोरॉन, 5वें साइकिल के बाद शॉक एंड एड्रेनालिन, 6ठे साइकिल के बाद शॉक एंड एमाइडोरॉन। सो शॉक प्लस एडीआर, शॉक प्लस एमाइडोरॉन, शॉक प्लस एडीआर, शॉक प्लस एमाइडोरॉन, ऐसे करके एडल्ट कार्डियक अरेस्ट का एल्गोरिथम रन करता रहता है। और ये कब तक हम लोग करते रहते हैं? बताएंगे। I can understand your enthusiasm, but this is difficult question to answer actually. So if you can see the algorithm again, in case of shockable rhythm, we give shock. Which are shockable rhythms? Shockable rhythms are ventricular tachycardia, that is pulseless. So we label it as PVT, and ventricular fibrillation. So this is not that these rhythms are difficult to identify. मतलब ECG पढ़ना शायद बहुत ही डिफिकल्ट काम है, मैं मानता हूँ, और मैंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हमें भी समझ में, मुझे लगता है कि 5-10% ECG हमें भी समझ में आता है, उससे ज्यादा हमें भी समझ में नहीं आता। पर मैं ये दावे के साथ जरूर कर सकता हूँ कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने शायद इसीलिए इसको सिंप्लीफाई किया है, शॉकेबल रिदम एंड नॉन शॉकेबल रिदम। हमें मतलब ही नहीं है डायग्नोसिस। If there is a victim of cardiac arrest and monitor is attached, and we are seeing that the rhythm is something that is not organized, it looks like VF, or it is VT without pulse, PVT. So these 2 rhythm are definitely शॉकेबल रिदम। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कोशिश है कि इस 2 रिदम को पहचाने, और अगर ये है तो इसको झटका दे, मतलब शॉक इसको दीजिए। बिकॉज चेस्ट कंप्रेशंस आप एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग सीपीआर इज रिकॉग्निशन ऑफ शॉकेबल रिदम एंड डिलीवरी ऑफ डेफिब्रिलेशन शॉक। तो हमको जब भी ईसीजी पढ़ना है सीपीआर के रिलेटेड, तो हमको बस मेरा टारगेट यही होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर टारगेट। टारगेट नंबर 1, वी आर नॉट गोइंग टू डायग्नोज ईसीजी, एंड टारगेट नंबर 2, वेदर इट इज शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। अगर ये क्लियर है तो फिर ज्यादा झंझट नहीं। तो अगर हम देखते हैं सीपीआर में कि रिदम शॉकेबल है तो हम लोग शॉक देते हैं, फिर सीपीआर करते हैं 2 मिनट तक, फिर देखते हैं रिदम शॉकेबल है, फिर शॉक देते हैं। अब हम लोग 2 शॉक दे चुके हैं और पेशेंट अगर रिवर्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि थोड़ा रिफ्रैक्टरी VT-VF चल रहा है। हम लोग को कुछ IV मेडिकेशंस देने होंगे। IV मेडिकेशंस आर ओनली 2, एपिनेफ्रिन that is adrenaline and amiodarone that as explained earlier slide. In case of asystole where there is no rhythm on the monitor, कोई भी रिदम नहीं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ऐसे फ्लैट लाइन जा रहा है। Although flat line is not flat line always, I will explain. और there is pulseless electrical activity, मतलब कुछ रिदम तो दिख रहा है जरूर मॉनिटर पे, पर कोई पल्स नहीं। पर कार्डियक अरेस्ट को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? एनी स्टूडेंट? कार्डियक अरेस्ट को हम लोग कैसे कहते हैं कि इस विक्टिम का कार्डियक अरेस्ट हो गया है? बोलो। Okay. So there are only 3 components of every answer is correct answer. So there are only 3 components of labeling a patient with cardiac arrest. One is unresponsive. ठीक है, उनका जवाब नहीं आया तो मतलब कि वो अनरिस्पॉन्सिव है।
there is no pulse. Pulse means carotid pulse. And there is no respiration. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, पार्टिकुलरली जब नए इंटर्न होते हैं, नर्सिंग इंटर्न या मेडिकल इंटर्न होते हैं, तो जैसे ही देखता है फ्लैट लाइन, अचानक सा पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देता है. मतलब अगर मैं सच सच बताऊं तो एक केस में हम लोगों ने प्रोग्नोस्टिकेशन शुरू कर दिया था. देयर वाज ए पेशेंट ऑफ ARDS ऑन वेंटिलेटर इन आवर ICU एट पटना एंड देयर वाज फ्लैट लाइन. तो उसको हम लोग पिछले 3 दिन से कह ही रहे थे कि अब ये नहीं बचेंगे, अब तो इनमें कुछ बचा नहीं है. तो जैसे ही हम लोग फ्लैट लाइन देखे, एक हमारा कॉलीग जो है वो CPR शुरू कर दिया और दूसरा जो हमारा है वो अपना प्रोग्नोस्टिकेशन शुरू कर दिया कि अब तो नहीं रहे, मतलब हम लोग दुखी हैं, सब शुरू हो गया. उसके बाद किसी सीनियर नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं आसपास में घूमते रहते हैं, उनको लगा हुआ कि सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. उसने आके ECG अटैच कर दिया. जब ECG अटैच कर दिया तो फिर वैसे ही था जैसे 1 घंटे पहले मामला चल रहा था. तो जो नए इंटर्न है, मतलब सीनियर लोगों से गलती नहीं होती. मतलब आप मेरे से अगर बोलोगे एट द एज ऑफ 42 आई विल नॉट कमिट दिस मिस्टेक, बट दिस इज नॉट दैट आई हैव नॉट कमिटेड दिस मिस्टेक व्हेन आई यूज्ड टू बी इंटर्न. हमने फर्स्ट ईयर PG में कांड किया है, मतलब जान जाते जाते बची थी, पेशेंट की नहीं, हमारी. तो फ्लैट लाइन इज नॉट कार्डियक अरेस्ट, माइंड इट. तुम पीछे वाले, फ्लैट लाइन इज नॉट कार्डियक अरेस्ट, राइट ना. कार्डियक अरेस्ट के लिए 3 चीज चाहिए हमें: अनरिस्पॉन्सिव, नो पल्स एंड नो रेस्पिरेशन, देन इट इज कार्डियक अरेस्ट. तो हम लोग जब कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम को देख रहे हैं, मॉनिटर अटैच कर रहे हैं, एंड वी डू नॉट फाइंड एनी organized rhythm on the monitor. Also there is no VT or VF, so cable rhythm. तो ऐसा लगता है कि ये कार्डियक अरेस्ट जो है दूसरे लिम्ब वाले में है, जो उस साइड वाला लिम्ब है, ये एसिस्टली है या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है. पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मींस पल्स नहीं है पर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है. वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब देखने में ठीक लग रहा है वो, है ना. वो हो सकता है कि हम लोग कंफ्यूज करें कि साइनस ब्रेडिकार्डिया है. उस कंडीशन में हमारे पास 3 ही उपाय है: रिस्पॉन्सिवनेस, पल्स एंड रेस्पिरेशन. अगर तीनों का जवाब ना है तो फिर कार्डियक अरेस्ट है. फिर आप चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दीजिए. 2-2 मिनट पे हम लोग रिदम चेक करते जाते हैं. अगर देखते हैं कि VT-VF है और सकेबल रिदम है तो वो लेफ्ट हैंड साइड के लिम्ब में आ जाता है. अगर नॉन सकेबल है तो राइट साइड में चलते रहता है. एसिस्टली और PEA में मेडिकेशन क्या है हमारे पास? वी हैव एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन. किसका मैनेजमेंट ज्यादा इजी है, VT-VF का या एसिस्टली और PEA का? एसिस्टली बड़ा सिंपल है. चेस्ट कंप्रेशन एडी और चेस्ट कंप्रेशन 2-2 मिनट में रोल बदलते जाओ और एड्रेनालिन देते जाओ. इट्स दैट सिंपल एज दिस. बस पेशेंट के लिए कौन सा अच्छा है? पेशेंट के लिए VT-VF अच्छा है, बिकॉज शॉकेबल रिदम है. अगर शॉक मिल जाता है तो वो रिवर्ट हो जाएगा. और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टली को रिवर्ट करना जो है, ROC अचीव करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है. सो CPR करते समय हम लोग को ये बात देखना, हमने पूछा था ना कि कब तक CPR करते रहेंगे. तो CPR हो सकता है कि आपको महीनों तक करना पड़े अगर आप ये 5H और 5T नहीं देखते हैं. अब जब तक ताकत रहेगी आप CPR करते रहोगे. नए इंटर्न तो और ज्यादा देर करते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं हमारी तरह वो पहले साइकिल में ही बोल देते हैं कि भाई है. क्योंकि वी आर एप्रीहेंसिव दैट कि कभी कोई स्टाफ या कोई JR ना बोल दे कि सर अब आपकी बारी है, आप चेस्ट कंप्रेशन शुरू करिए. तो सर कितनी देर चेस्ट कंप्रेशन कर पाएंगे? तो जब हम लोग CPR करते हैं, शॉक देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, तो हमारा जो टीम लीडर है, अब टीम लीडर कोई ऐसा डेजिग्नेटेड बंदा नहीं है जो इसके पास फलानी डिग्री है वो टीम लीडर है. एनी ऑफ द 6 मेंबर कैन बी अ टीम लीडर. और टीम लीडर के लिए चाहिए क्या? क्या चाहिए? हाँ बोलो बोलो. हाँ सही बात है. और उसके पास कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना. तो उनके जैसा बनना पड़ेगा तो टीम लीडर बन जाओगे कट से, है ना. मतलब हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई टीम लीडर बन जाए कि भाई हम पहले से आए हैं तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे नहीं. ऐसे भी जो पहले आता है वो चेस्ट कंप्रेशन पे लगता है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? यू कैन सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ. सबसे इंपॉर्टेंट इज चेस्ट कंप्रेशन, तो उसको तो छोड़ नहीं सकते हो. 5H 5T हमको याद करने की जरूरत है. मोबाइल बज रहा है क्या? अच्छा वहाँ प्रोग्राम हो रहा है.
प्लीज एक जगह लगा सकते हैं। So we need to remember 5H and 5Ts because these are potential reversible causes of cardiac arrest. हम चेस्ट कंप्रेशन किए जा रहे हैं पर हमें पता नहीं कि हमारे पेशेंट का हाइपोक्सिक कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हमें नहीं पता है कि ये ट्रॉमा का विक्टिम है और इसका इतना ब्लड लॉस हो गया है कि हाइपोवोलेमिक शॉक में और शॉक के बाद इसका अरेस्ट हो गया है। एसिडोसिस, जो लोग इमरजेंसी आईसीयू एमआईसीयू में काम करते हैं उनको पता होगा, एबीजी फ्रीक्वेंटली देखते होंगे। पोटेशियम इज ईदर वे लिथल फॉर लाइफ, इसलिए हम लोग जब रांची मेडिकल कॉलेज में थे तो आपको पोटेशियम का एम्पल लेने के लिए आपको जो नर्सिंग इंचार्ज होते थे वार्ड के, उनके चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको कहीं मिलेगा नहीं पोटेशियम रखा हुआ। क्योंकि अगर आप किसी को पोटेशियम दे दे तो उसकी डेथ हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया, भाई जो कार्डियक सर्जरी होती है उसमें तो पोटेशियम देके ही हार्ट को कार्डियो मारते हैं, कार्डियोप्लेजिया देते हैं। तो पोटेशियम इज लिथल इधर वे। अगर हाइपरकैलेमिया भी होता है तो इट विल लीड टू कार्डियक अरेस्ट, अगर हाइपोकैलेमिया भी होता है तो इट विल लीड टू कार्डियक अरेस्ट। हाइपोथर्मिया हमारे देश में ज्यादा कॉमन नहीं है बिकॉज वी आर नेटिव ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्री, पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पे हाइपोथर्मिया एक बहुत एविडेंट है। और अभी अगर आप लोग को याद होगा, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, पुरानी इमरजेंसी में 1 या सवा साल पहले, इस विंटर के पिछले वाले विंटर में जब काफी कोल्ड हो रहा था तो एक हमारा होमगार्ड का जो जवान था उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया था। इमरजेंसी में आया, हमारे ईमो को पता ही नहीं चला कि ठंड लगने से भी हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो यही केस था हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया इज वेरी लिथल एक्चुअली। अगर हम टी की बात करें तो ये जो टी वाले कंपोनेंट है ये सब थोड़े सोफिस्टिकेटेड है। मतलब एच वाले कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आने वाले हैं। जैसा हिपोक्सिया आपको समझ में आता है, इट इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो आप ऑक्सीजन लगा सकते हो। हाइपोवोलेमिया भी हम लोग को समझ में आता है, हम लोग उसको फ्लूइड दे सकते हैं। हाइड्रोजन एंड एसिडोसिस जो है, जो थोड़ा सा भी काम करता है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है इवन एट इंटरनल लेवल, तो हम लोग पीएच देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि एसिडोसिस है। पोटेशियम का तो लेवल पता ही रहता है, इट इज 3.5 to 5.5 मिलीग्राम पर लीटर, तो उसका लेवल कम होना है ज्यादा होना पता चल जाता है। हाइपोथर्मिया भी है, टेम्परेचर ले सकते हो, पता चल जाएगा कि हाइपोथर्मिया हो रहा है। पर अगर टी वाले कंपोनेंट अगर आप देखते हो तो ये थोड़े से डिफिकल्ट कंपोनेंट है। जैसे टेंशन निमोथोरेक्स। टेंशन निमोथोरेक्स का मतलब है कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें हवा बढ़ गया। हवा को रहना कहाँ चाहिए था? इनसाइड लंग्स। है हवा कहाँ? लंग के बाहर, एक क्लोज चेस्ट में, तो लंग को कोलैप्स कर रहा है। कार्डियक टेम्पोनेट सिमिलर सिचुएशन है। हार्ट के ऊपर का जो कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी, वहां पे ब्लड जमा हो गया है या फ्लूइड जमा हो गया है जो हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, हार्ट को फिल नहीं होने दे रहा है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, दैट इज एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, पीई, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, पता नहीं मतलब आप लोग इन टर्म लोग कितने समझते होंगे। हम ईमानदारी से अगर बात कहें तो हमें समझने में कम से कम 15 साल लगे हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हमें बस पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में एक ही बात पता था कि अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है ऑल ऑफ सडन, और अगर हम बता नहीं पाते हैं कि क्यों डेथ हुई है, तो हमको बस ये बोलते हैं कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया। क्योंकि ये बोलने के बाद कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और हमारे यहाँ ऑटोप्सी होता नहीं है, तो डेथ के बाद पोस्टमार्टम सीटी स्कैन होता नहीं है, तो उसमें हम लोग बच सकते हैं। तो जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है बेसिकली ये बहुत कॉमन है हॉस्पिटल्स में। हमें नहीं पता था कि इतना कॉमन होता होगा। हम लोग तो ये समझते थे कि बस डेथ सर्टिफिकेट में लिख देना है, बस काम खत्म हो गया। देखो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पैरों में जो क्लॉट बन जाते हैं, दे आर वेरी कॉमन इन आवर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। वी कैन नॉट मूव देयर लिम्स। तो बेड पे पड़े पड़े क्या होता है कि उनका जो जो डीप वेन्स होते हैं पैर में, उसमें थ्रम्बस बनता है और फिर वो एम्बोलाइज होकर अचानक से जाता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा देता है। और कई बार तो हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट एकदम बिल्कुल अब डिस्चार्ज होने वाला है, घर वालों से बातचीत हो गई कि आज डिस्चार्ज आपका हो जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा डेफिनेटली। और फिजियोथेरापिस्ट को हमने बुलाया कि भाई देखो अम्मा जा रही है, जरा इनका फिजियोथेरापी कर दो। उसने थोड़ा बैठा उठा दिया, लिम्ब ऐसे ऐसे खींच दिए, उसी समय क्लॉट डिसलॉज हो गया एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। और पेशेंट की मतलब जो पेशेंट बिल्कुल अब जाने वाला था, डिस्चार्ज समरी टाइप हो गई है, उसका डेथ समरी टाइप करना पड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टी वाले कंपोनेंट जो है ना थोड़े इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सीपीआर पढ़ रहे हो तो टी वाले कंपोनेंट को जरा ध्यान से रखना है, इनको रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है। टेंशन निमोथोरेक्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। हाइपोक्सिया तो पल्स ऑक्सीमीटर बता देगा कि इनको हाइपोक्सिया हो रहा था पिछले 6 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। हाइपोवोलेमिया
एसिडोसिस, हाइपोएपिकेलेमिया, हाइपोथर्मिया, ये सब पकड़ने बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट टी वाले कंपोनेंट पकड़ने बहुत ही डिफिकल्ट है। टेंशन निमोथोरेक्स को परकस करके, ऑस्कल्टेट करके, अल्ट्रासाउंड करके, उसके बाद भी डेफिनेटली कहना कि इस पेशेंट को टेंशन निमोथोरेक्स है डिफिकल्ट है एट माई लेवल एवर। कार्डियक टेम्पोनेट थोड़ा आजकल इको मशीन आ गई है तो उससे थोड़ा पकड़ में आ जाता है जल्दी, अदरवाइज ये भी डिफिकल्ट था। और एक्यूट एमआई, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये सब तो डिफिकल्ट है। फिफ्थ चीज टॉक्सिन्स। अब बताओ हम लोग में से किसका एक्सपीरियंस टॉक्सिन का है? ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ रोज रोज पॉइजनिंग के पेशेंट आते रहते हैं और हम लोग वेल बस जाए कि अच्छा ये पॉइजनिंग है, ये से सिम्टम हो रहा होगा तो ये टॉक्सिन का हो गया है। तो टी वाले कंपोनेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अब अगर हम बात करें कि ACLS में जो हम बताए थे कि एयरवे है, ब्रीदिंग है, इसको हम लोग थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म में करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मॉर्निंग में एयरवे का क्लास हुआ होगा, शायद हुआ था ना, तो इसको ज्यादा हम खींचना नहीं चाहेंगे। पर ये बात हमको ध्यान देना है कि किसी भी एयरवे एडजंक्ट को यूज करने से पहले जो बेसिक मैन्यूवर्स हैं, जिसमें ओरोफेरेंजियल सक्शन, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, ओरोफेरेंजियल एयरवे, नेजोफेरेंजियल एयरवे, even supraglottic devices, these are very easy to use actually, and it rapidly establishes the patency of airway. So we should never hesitate to perform these procedures, or we should not wait for high-pay things like tracheal intubation, laryngoscopy, buzi and everything, because the simple maneuvers is going to establish the patency of your airway and patient can easily take breath. And if patient is unable to take breath, you can give it through the positive pressure ventilation, because अगर एयरवे पेटेंट नहीं है तो आपके बैक दबाने से तो हवा जाएगा नहीं। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का एम्पल जो है, हमें लगता है कि अगर कोई 6 मीटर के डिस्टेंस से भी देख ले तो शायद पकड़ में आ जाता है कि एड्रेनालिन है, जो लोग यूज किए हैं। और जो लोग यूज नहीं किए उनको क्या होता है, उनको 10 मिनट लग जाते हैं एड्रेनालिन खोजने में कि एड्रेनालिन कहाँ पे रखा हुआ है, ये है वो है, फिर नाम पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि कम एज के लोगों के आंख अच्छे होते हैं, इसलिए वो लोग छोटा छोटा भी लिखा रहता है, पढ़ लेते हैं। इसलिए बड़ी एज वाले जो है वो वायल देख के वो ऐसे ऐसे करके एम्पल देख के पहचान जाते हैं। एक एम्पल जो है 1 ml का होता है और उसमें 1 mg एड्रेनालिन होता है। डोज जैसा कि हमने बताया CPR में एवरी 3 to 5 मिनट्स है। एवरेज निकालने के लिए आप 4 मिनट्स रख लो। एक साइकिल, कार्डियक साइकिल कितने का होता है? 2 मिनट्स का होता है, तो 4 मिनट पे देने हैं, तो मतलब एवरी अल्टरनेट साइकिल हम लोग को एड्रेनालिन देना है, जो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। और ये वो मेडिकेशन है जो एसिस्टेली हो या VTVF वाला, दोनों में यूज होता है, कॉमन है। दूसरा हमारे पास एमेडोरॉन है, जो कार्डेरॉन के नाम से ज्यादा आता है। हमने पहले कार्डेरॉन सीखा, फिर एमेडोरॉन सीखा। इसकी पैकिंग आती है 150 mg 1 एम्पूल में। फर्स्ट डोज इज 300 mg एंड सेकेंड डोज इज 150 mg। टाइमिंग इज एवरी 3 to 5 मिनट्स, एवरेज 4 मिनट्स एंड कैन बी गिवन इन अल्टरनेट साइकिल। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सॉक सॉक, सॉक ADR, सॉक एमेडोरॉन, सॉक ADR, सॉक एमेडोरॉन। कार्डेरॉन देने से बेसिकली क्या होता है ना कि जो हम लोग सॉक देते हैं, मेन ट्रीटमेंट तो हमारा वही है, उसकी थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब उसके थोड़े सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कार्डेरॉन देने से। अदर इज लिग्नोकेन, जाइलोकार्ड। हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है उस मेडिकेशन से जो हम लोग लोकल एनेस्थेसिया में यूज करते हैं, बिकॉज दैट कंटेन्स द प्रिजर्वेटिव मिथाइल पैराबेन। तो हम लोग को देखना है कि ये प्लेन लिग्नोकेन होना चाहिए। 2% सप्लाई होता है, 50 ml का वायल होता है। डोज इज 1 to 1.5 mg पर केजी फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज इज हाफ टू द इनिशियल डोज। ये भी एमेडोरॉन के बदले में देते हैं, तो 3 to 5 मिनट्स देंगे एवरी 4 मिनट। नाउ डिफिब्रिलेशन, दिस इज द मैजिक मशीन एक्चुअली। अभी हमारे इमरजेंसी में 10 से 12 दिन पहले एक पेशेंट का ड्यूरिंग राउंड, पता नहीं क्या उसका बात कर रहा था, बात करते करते उसका कार्डियक अरेस्ट, लेकिन चूंकि वो इमरजेंसी में था, थोड़ा उसके अटैच हो गए मॉनिटर से, दिख रहा है कि इसको VT हो रहा था। एक शॉक मिला, उसमें रिवर्ट नहीं हुआ, दूसरे शॉक में रिवर्ट हो गया। इज कॉन्शियस ओरिएंटेड, अभी भी है हमारे यहाँ। बेसिकली दिस इज मिरेकल मशीन। अगर शॉकेबल रिदम है और अगर आपने दे दिया है तो इट विल रिवर्ट, लाइकली टू रिवर्ट रिदम। अगर कोई 5H या 5T वाले कंपोनेंट में पेशेंट अगर नहीं फंसा हुआ है, अब किसी का अगर एसिडोसिस हो रहा हो, हाइपरकैलेमिया हो रहा हो, तो शॉक कितना देर काम करे? फिर आपको 5H 5T तो काम करने ही करने हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेप्स होते हैं 1 2 3 और उनके कलर कोडिंग होते हैं। 1 से हम लोग ऑन करते हैं, 2 से सिलेक्ट एनर्जी करते हैं,
3 से चार्ज करते हैं, फिर एक बटन होता है शॉक का जिसपे एक सिंबल भी शॉक टाइप का बना रहता है जिससे हम लोग शॉक कर देते हैं। अब क्या है कि जो डिफिब्रिलेटर है, ये मशीन तो सारे वार्ड सारे ओटी हर जगह पे रखा रहता है, पर इसको थोड़ा यूज करने के में लोग हेजिटेट करते हैं, इवन इफ द रिदम इज शॉकेबल। तो हम लोग को थोड़ा ये देखना है कि आजकल तो यूट्यूब अवेलेबल है, हम लोग एवरी 10 डेज 12 डेज 15 डेज शॉकेबल रिदम को देख सकते हैं एक बार आंखों से 2 मिनट के लिए, कि अगर कहीं मिल जाए तो हम पहचान लें और शॉक को कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सके। पर्टिकुलरली शॉक को वो लोग डिलीवर कभी नहीं करते हैं जो रिससिटेशन में रेगुलर नहीं रहते हैं, जैसे ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, कार्डियोलॉजी, ये लोग तो हमेशा शॉक देते रहते हैं तो दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो बाहर के हॉस्पिटल्स में या अपने हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स में, तो दे आर वेरी वेरी हेजिटेंट टू यूज दिस डिफिब्रिलेटर। उनको लगता है कि पता नहीं इसका यूज करने से हो क्या जाए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी गजट को, किसी भी मशीन को यूज करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को जानकारी चाहिए, और जानकारी जब हो जाएगी तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस के मेंटेन करने के लिए क्या जरूरत है कि आप डमी केसेस रोज मतलब कम से कम 2 वीक 3 वीक्स में यूट्यूब पे देखते रहें, तो उससे थोड़ा हम ओरिएंटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसमें एक बात आती है कि कितने एनर्जी का शॉक देना चाहिए, जितना मैक्सिमम है उतना दे दो, ये भी क्लियर कर दिया है HACA ने, ज्यादा झंझट नहीं है। बाईफेजिक में 200 जूल का होता है मैक्सिमम, और मोनोफेजिक में 360। अब तो मोनोफेजिक उतना मिलता नहीं है, बाईफेजिक है 200 जूल, आप 200 जूल दे दीजिए। डिफिब्रिलेटर पैडल्स पे भी चार्जिंग बटन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप चार्जिंग के मूड में अभी हो नहीं और उस बटन को आप दबा दे तो आपके पैडल्स चार्ज हो जाएंगे। और शॉक डिलीवरी के लिए वहां भी बटन होते हैं, पैडल्स पे भी होते हैं और मशीन पे भी होता है। अगर कोई मशीन से ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ अगर आप पैडल पकड़े हैं, आपको सिर्फ पैडल पकड़ने हैं, बाकी काम जो डिफिब्रिलेटर मशीन पे खड़ा है वो करेंगे। अगर आप पैडल से खुद करना चाहते हैं तो यू कैन चार्ज एंड यू कैन डिलीवर शॉक। इसमें पेडियाट्रिक पैड भी होता है। जितने डिफिब्रिलेटर के पैडल्स होते हैं वो इजीली डिटेचेबल होते हैं। उनमें नीचे से अगर आप देखोगे यहाँ से नहीं कर सकते, हाँ ये है ना, ये डिटैच हो जाएगा, तो उसके नीचे में छोटा सा पैडल होता है। और इसीलिए हमारा जो मैनुअल डिफिब्रिलेटर है एडवांस मशीन है कि इन केस ऑफ नियोनेट और पेडियाट्रिक पेशेंट्स यू कैन सेलेक्ट द एनर्जी। एड में आप एनर्जी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें अटेन्यूएटर होता है तो 200 जूल को 60-70 जूल तक ला देता है, बट एग्जैक्टली 2 जूल पर केजी बॉडी वेट या 4 जूल पर केजी बॉडी वेट वो नहीं ला पाएगा। अब बात है कि टर्मिनेशन ऑफ रिससिटेशन कब किया जाए। अरेस्ट नॉट विटनेस्ड, मतलब कब अरेस्ट हुआ है हमें पता नहीं है। नो बाय स्टैंडर्ड सीपीआर, अरेस्ट हुआ था पर कोई सीपीआर इनिशियल दिया नहीं है। नो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन बिफोर ट्रांसपोर्ट, आपको हॉस्पिटल में आने से पहले कोई ROSC हुआ नहीं था। एंड नो शॉक वाज डिलीवर्ड बिफोर ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल में आने से पहले कोई शॉक डिलीवरी उसकी नहीं हुई थी। अगर सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट हैं तो यू कैन टर्मिनेट द रिससिटेशन। अगर चारों में से कोई भी अगर नेगेटिव है तो आपको CPR कंटिन्यू करना है। अगर नहीं इनिशिएट हुआ है तो इनिशिएट करना है, अगर इनिशिएटेड है तो कंटिन्यू करना है। प्रेगनेंसी में ACLS में या BLS में थोड़ा सा ध्यान रखने का बात होता है कि हम लोग जो IV कैनुला लगाते हैं वो कोशिश करते हैं कि डायफ्राम के अबव लगाएं, बिकॉज जो हम लोग नीचे अगर पैर वैर में लगा देते हैं तो इंफीरियर वेना कैवा के कंप्रेशन से हो सकता है कि हमारे मेडिकेशंस पहुंच ही ना पाए सेंट्रल सर्कुलेशन में। और दूसरा जो ध्यान देने का बात है कि we provide continuous lateral uterine displacement, ताकि इंफीरियर वेना केवा जो वेनस रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेजर वेसल है, उसका कंप्रेशन थोड़ा हट जाए। तो ये 2 कंपोनेंट याद रखना है इसमें। सो की पॉइंट्स आर ACLS begins with a high quality BLS। आप ACLS को कभी ना समझे कि अचानक सा आप मशीन गैजेट्स और एयरवे एडजंक्ट्स लेके आ जाएंगे और ACLS हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। कार्डियक अरेस्ट का रिकॉग्निशन उसी 3 चीज से होंगे, अनरिस्पॉन्सिवनेस, नो पल्स मींस नो कैरोटिड पल्स, नो ब्रीदिंग, और इनिशिएशन उसका बेसिक लाइफ सपोर्ट से ही शुरू होगा, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, हाई क्वालिटी CPU, हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशंस। टाइमिंग, सीक्वेंसेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंटरवेंशंस आर की टू ROSC। जो टाइमिंग है 2 साइकिल देने हैं, डिफिब कब करना है, सीक्वेंस कैसे देने हैं, मेडिकेशंस का सीक्वेंस क्या, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट उस सीक्वेंस को मेंटेन करना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। Defibrillation is very very important component of ACLS. We must be knowing till now. After ROSC, continue same intensity for search of the reversible causes of cardiac arrest.
और जब एक बार ROSC हो जाता है, यूजुअली क्या होता है आईसीयू में जो वेंटिलेटेड पेशेंट होते हैं उनका ROSC पहली बार हो जाता है, और जैसे ही पहली बार होता है समोसा का ऑर्डर भी साथ में ही हो जाता है। वी डू नॉट मेक एनी डिले, चाय समोसा भाई जाए, और तब तक जब चाय समोसा आता है, क्यों सर, उसके बाद क्या होता है कि दूसरा अरेस्ट हो जाता है, जब तक सैनिटाइजर लगाओ तब तक फिर जाके कूदना पड़ता है। तो ये बात देखना है कि 5H 5T और अदर पॉसिबल कॉजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट उसको रूल आउट करना है, ट्रीट करना है, और तब समोसे का ऑर्डर होना चाहिए। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ ACLS। तो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट का एक लेक्चर भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग ROSC तो कर लेते हैं पर फिर उसके बाद पेशेंट लूज कर लेते हैं। फर्दर रीडिंग के लिए इट इज सजेस्टेड दैट ACC AHA को जो सर्टिफाइड कोर्सेस है BLS के ACLS के, उस कोर्स को करने चाहिए सब लोग को, 2-2 साल पर करने चाहिए। और जो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं उस गाइडलाइंस को 2020 के गाइडलाइंस अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसको पढ़ने चाहिए। क्यूज के लिए हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना दिए थे। ड्यूरिंग CPR हाउ मेनी ब्रेथ्स आर गिवन पर मिनट टू एन इंटुबेटेड विक्टिम? Difference between an AED and a defibrillator? मतलब अब आप भी बताएंगे? प्रभु हमने आपसे सीखा। Closed loop communication is desired as a critical component of effective team dynamics. Yes or no? If yes, इसमें भी डाउट है क्या? The answer is yes. बट क्वेश्चन ये कि क्लोज लूप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लोज लूप कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर हमने कहा कि इनको एड्रेनलिन दे दीजिए 1 mg, मतलब देने के बाद हमें बता दीजिए कि एड्रेनलिन मिल गया है। अदरवाइज क्या होता है, यूजुअल जो हम लोग का काम करने का स्टाइल होता है, हमने उनको कहा दिया था, अब उनसे पूछो हमने उनको कहा दिया था, तो क्लोज लूप कम्युनिकेशन नहीं है। नेम फ्यू एडवांस्ड एयरवेज। अगर हम इससे बात करते हैं तो सुप्राग्लोटिक एयरवेज जो हैं, जैसे कोबरा LMA है या एम्बू LMA है, आइजेल है, एंडोट्रैकियल ट्यूब है। नेम ड्रग्स विद डोजेज यूज ड्यूरिंग ACLS। हमें याद रखना है एड्रेनलिन 1 mg, amiodarone 300 mg फर्स्ट डोज एंड 150 mg सेकेंड डोज। Thank you very much. This week is dedicated to all.